Hello, good morning, students. So, today we are going to see chapter 15. The chapter name is Economic Development and Planning. So, let's start this chapter with a short introduction here. In modern age, everyone desires to have a house to live, food to eat, clothes to wear, and the facility like education and health of their children. But all this is possible only when they get an employment so that they can earn enough and thus is can be fulfill their needs. This process is known as the economic development in economics. Thus, this can be said that the economic development is such a continuous process as a result of which all factors of the production of a country are used efficiently in this process. National income and per capita income increase continuously and leads to a long-term growth. Following are the opinions of the एंशियंट एंड मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि अगर हम मॉडर्न एज की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। आज के टाइम पे लोग जो है अच्छे कपड़े, अच्छे खाना, अच्छी तरह का एजुकेशन, अच्छी हेल्थ स्टाइल, अच्छी तरह से बच्चों को रखना, ये सारी चीज़ें प्रेफर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है और वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट से ही है जो अच्छा ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है वो चलिए हम देखेंगे आगे। इन एंशियंट टाइम इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन स्पैरो। इट मीन्स दैट एट द टाइम इंडिया वॉज अ प्रॉस्परस एंड डेवलप्ड कंट्री। हियर द इकोनॉमी वॉज मेनली बेस्ड ऑन द सिंपल लिविंग, हार्ड वर्क एंड म्यूचुअल ब्रदरहुड. Sufficient food grains and were obtained from a fertile land, and the cottage and the rural industry made their living easy. Trade was done on a large scale with the people that the state and the villages were happy and prosperous. In ancient times, under the economic development, along with the materialistic facility, human value were also given important place. The great thinker Kautilya described this thought in the detail in his book Arthashastra. In ancient time, a special place was given to the materialistic prosperity under the economic development and global level. The mercantile thinkers of the Germany and France considered gold and silver as the basis of a development. The concept of a development kept on changing with the time. According to the classical economist Adam Smith, economic development has been defined to increase the in goods and services of a country. Karl Marx considered economic development as establishment of socialism. J.L. Main's opinion about the economic development is totally different. He considered economic development as follow the principle of the cooperation of a welfare of the people and economic development. अब देखिए कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये हर किसी का अपना अपना रहा। अगर हम बात करें इंडिया की तो अगर जो प्राचीन काल से कहा जाता है कि इंडिया क्या थी, एक सोने की चिड़िया थी। तो यहाँ पे बेसिकली इंडिया ये जो था बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस कंट्री था। यहाँ पे हर चीज़ जो है सफिशिएंट अमाउंट में हमारे लिए थी। अगर हम खाने की बात करें, पहनने की बात करें, चांदी की बात करें या सोने की बात करें, तो काफ़ी सारे मटेरियलिस्टिक टर्म पे अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस थी। और ये जो है ग्रेट थिंकर जो कौटिल्य था उन्होंने ही इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है डिटेल में अपनी बुक में अर्थशास्त्र में। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इंडिया को काफ़ी लूटा गया है बाय द ब्रिटिश और भी कई सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस कर रही है। कई सारे जो लोगों ने हम पे राज किया, जैसे कई जो मुग़ल शासन था और बाकी सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें क्या है कहीं ना कहीं हमारी कंट्री से कहीं दूसरी कंट्री में जाने लगी। तो इस वजह से जो है डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उस समय कम हो गया। अगर हम दूसरी तरह तौर पे बात करें तो एंशियंट टाइम में जो लोग हैं जो काफ़ी मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल की ग्रोथ मानते थे, तो उनका कहना है कई जो थिंकर्स थे जैसे जर्मन और फ्रांस के, तो उनका कहना था जो गोल्ड और सिल्वर होता है यही मेन बेसिस होता है किस चीज़ का, डेवलपमेंट का। तो उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट जो थी यही थी और डेवलपमेंट जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है। उसके बाद जो है एडम स्मिथ जो थे उनके हिसाब से जो है जो गुड्स और सर्विस का काम है ये अगर बढ़ता है तो ये डेवलपमेंट है। फिर कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो उनके हिसाब से सोशलिज्म अगर बढ़ती है तो डेवलपमेंट है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने डेवलपमेंट की अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग बातों को बताया। Among the new economists, Paul Albert considered the economic development as the increase in the real nation income by use of the productive resource by a country, while in the opinion of the Williams and the Burstrick's development in increase in the per capita income of the all people of a country. The opinion of a D. Brink Singh is different from all than this. That economic development involved not only increase in the money income but also improvement in the social welfare. Professor Amrit Sen, and honored by the Nobel Prize, has also given a special importance to the social welfare.
अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो कई सारे लोग थे उन्होंने अपना अपना जो है बताया कि नेशनल इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या क्या क्या रियल चीज़ है जो है जिन पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उन्होंने शेयर की हैं और बताई हैं। इसके साथ साथ देखिए मीर एंड द बाल्डविन हैव डिफाइंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस वेयर द इकोनॉमी इज़ द रियल नेशनल इनकम इंक्रीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। अब मैरी और बाल्डविन ने जो है उन्होंने ये थ्योरी दी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अब नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ईजिली। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट एरिया आर एज बिलो। अब देखिए जो मेन नॉलेज और कैरेक्टरिस्टिक्स थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो क्या है, कैसी है, वो आगे यहाँ पे बताई गई है। कंटिन्यूस प्रोसेस। Economic development is a continuous process as a result of which the national income gradually increases. There is a continuity in demand and supply of a commodity in an economy as a result of this process. अब कंटिन्यूस प्रोसेस है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कंटिन्यू चलते रहता है, और नेशनल इनकम जो है ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होते रह जा रहा है। इसके साथ जो इसकी डिमांड है ये कंटिन्यूटी में सपोर्ट करती है सारी कमोडिटी को। इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अब नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है ये किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, चलिए देखिए आगे। नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली a long period process. Economic development is a long term process because the development cannot be called a short term or a short period increase or change. For example, if any 1 year agriculture production increased due to a good rain, thereby the national income will also be increased, but it cannot be called a economic development. देखिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक छोटे टाइम में या बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें एकदम से ठीक हो जाएगी। कई बार अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो पूरा जो इंक्रीज़ होता है सारी चीज़ों के लिए 1 ईयर का टाइम लग ही जाता है इंक्रीज़ होने में। तो ये जो है ईजी नहीं है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। Proper utilization of resource. In economic development, all the resources available in the country are utilized efficiently. अब जो भी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है, रिसोर्स अवेलेबल है, हमें उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। Improvement in the standard of living and the social welfare. In economic development, the standard of living of a common people improved due to the increase of per capita income. Economic disparity decreases. The public welfare programs such as education, public health, etc. are increased by a government. It improves the standard of living of people, increase in income of a country and in people in the result of the economic development, which are known as the national income and per capita income. अब देखिए इम्प्रूवमेंट और स्टैंडर्ड की बात की जा रही है तो हम जानते हैं अगर किसी इंसान की इनकम यानी उसे एम्प्लॉयमेंट से अगर एक सफिशिएंट अमाउंट में सैलरी मिल रही है जो उसकी सारी नीड्स कंप्लीट करने के बाद थोड़ी और बच रही है, तो क्या होता है कहीं ना कहीं लोगों का सोशल स्टैंडर्ड क्लास जो है बढ़ता चला जाता है। तो ये उन्हें हेल्प करता है अपनी लिविंग स्टाइल और सोशल वेलफेयर को और अच्छा बढ़ाने में। नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम. National income. The national income is the income of a country is obtained by adding the monetary values of the commodity and the several produces in the country in a year. Defining a national income, Marshall writes the labor and the capita of the country acting on its natural resource, material and non-material, including a service of all kinds, produce annually a certain net aggregate commodity. This is the real net annual income on revenue of the country for the national divided. The following facts related to the national income are important. National income is related to all quality of the goods and services produced in a particular period or in a year. Market price of all kinds of goods and services are included in the national income, in which price of one commodity is counted only once. Income from the foreign country is added on it, and income earned by the foreigners from the country is deducted from it. अब यहाँ पे देखिए वही सारी चीज़ों को बताया गया है कैसे क्या डिडक्ट हो रही है, कैसे क्या बढ़ाई जा रही हैं। अब पर कैपिटा इनकम को कैसे निकाला गया है। When the national income of the country is divided by the total population, then what we get is the per capita income. यानी देखिए जो फॉर्मूला है पर कैपिटा इनकम निकालने का वो क्या है, जो भी नेशनल इनकम निकल रही है उसको डिवाइड करना है किससे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री से। तो जो निकलेगी इनकम वो रहेगी पर कैपिटा इनकम, यानी
Per capita income gives us the idea of the standard of living of the people, that of the country. If the per capita income is increasing in a country, that means the life of the people of the country are becoming happier. It means their standard of living is improving. अगर मान लीजिए जो ये इनकम निकल रही है पर कैपिटा इनकम, अगर ये अच्छी इनकम है, ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये हमें बताती है कि वहाँ के रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल क्या है, वो अच्छी होती जा रही है और खुशहाल है और भी बेहतर हो रही है, इम्प्रूव हो रही है. Indicators of the development. Gross national income is accepted as a means of compare that the level of development between a different country for a long period of time. According to this measure, country have higher income are considered to be more developed as compared to the country have lower income, because the people of this country consume more goods and due to the higher income. The national population of the different country, different importance of the size of the population is accepted for a good measure of a measuring level of a development. But national and per capita income, because it gives some importance only to the average income, actually the facility of health, education, housing, nutritive food, drinking water, etc. provided to the common people should be included to the development. Therefore, as an alternative for the national and per capita income, the importance is given human to a development indicator for a measuring economic डेवलपमेंट. अब देखिए बेसिकली यहाँ पे बताया गया है क्या क्या इंडिकेटर्स हैं कि डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है. अब लोगों के पास अगर पैसा ज़्यादा होगा, लोग पर कैपिटा में ज़्यादा इनकम ले पा रहे हैं, तो वह क्या करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी अच्छी नीड्स अपनी कंप्लीट कर पाएंगे. तो ये सारी चीज़ें हमें शो करती हैं कि कहीं ना कहीं क्या है, लोगों की इनकम हायर होने से लोग एक प्रॉपर मेजर में अपनी डिफरेंट कंट्री से अगर हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं लाइफ जो है बेहतर होती चली जा रही है. अब ये सारी चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट के बेस पे हम कंसीडर करते हैं. प्रोफेसर मॉरिस डेवलप्ड अ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इन दिस direction. Similarly, the Professor Paul Stratton emphasized on accepting the basic need approach in the year 1919. United Nations Organization publication Human Development Indicator or Index by giving a absolute form to this thought. After this, these indicators of the economic development were published in the report of the Human Development Indicator. Both physical and non-physical factors are included in Human Development Index. Gross domestic product such as physical factor and the child mortality rate, life expectancy, the educational achievements and non-physical factor are included in it. अब देखिए इसके जो प्रोफेसर थे जिनका नाम क्या था, मॉरिस डेवलप्ड अ फिजिकल क्वालिटी, मतलब फिजिकल क्वालिटी से उन्होंने डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट निकालना शुरू किया है. यानी यूनाइटेड नेशन जो है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर इंडेक्स पे बात करता है, तो ह्यूमन की लाइफ कितनी ज़्यादा डेवलप हो रही है, किस तरह का काम हो पा रहा है, नहीं हो रहा. कई सारे फिजिकल फैक्टर जो है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिस तरह की है, एजुकेशनल अचीवमेंट्स, इन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, काउंट करना शुरू किया और उसके बेसिस को उसमें इंक्लूड किया. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अब कंस्ट्रक्शन क्या किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, उसके क्या क्या फैक्टर्स थे, चलिए देखते हैं आगे. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट अ टाइम ऑफ बर्थ फॉर मेजरिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, rate of adult literacy and total enrollment ratio, per capita gross domestic product. First of all, the indicators of all these three factors are prepared separately to calculate a human development index. This after their average is calculated, whose value is presented between 0 to 1. The indicator of the most developed country stands near 1 and the most undeveloped countries indicator stand near 0. On the basis of the country of the world are classified into the following three classes according to their लेवल ऑफ डेवलपमेंट. अब देखिए जो क्लास है यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं और उसके बेसिस पे ही जो है यहाँ पे 0 to 1 में प्रेजेंट किया गया है वर्ल्ड में क्या रैंक आ रही है, नहीं आ रही है, और उस तरह से ही ये लेवल जो ये इंडेक्स है उसे तैयार किया गया है. हाईली डेवलप्ड कंट्री, those countries whose indicator is measured 0.8 or more are considered as a highly developed country. अब जो जिनका मेजर 0.8 से ज़्यादा निकलता है उन्हें हाईली डेवलप्ड कंट्री के इस रेशो पे रखा जाता है. मीडियम डेवलप्ड कंट्री, दोज कंट्री आर कंसिडर्ड टू बी अ मीडियम ह्यूमन डेवलप्ड कंट्री हुज इंडिकेटर इज मेजर्ड फ्रॉम 0.5 to 0.8. अब जो कंट्री का बेसिकली डेवलपमेंट जो इंडिकेटर है वो 0.5 to 0.8 रहता है, उन्हें हम मीडियम डेवलप्ड कंट्री कहेंगे. अब बात करते हैं लेस डेवलप्ड कंट्री की. दोज कंट्री आर कंसिडर्ड टू बी अ लो ह्यूमन डेवलप्ड कंट्री, दोज मेजर्स ऑफ द इंडेक्स इज बिलो 0.5. Under the development program of the United Nations Organization, the Human Development Index has been published for 177 countries.
According to this index, 63 countries are highly developed, 83 are medium, and 31 are a low human developed country. Among these countries, India ranked 126th according to the Human Development Report 2006. Human Development Index of some country of the world are shown in the table. अब देखिए यहाँ पे टेबल बनाया गया था, उसी में बताया गया है कि क्या किसकी रैंक है उस रिपोर्ट में. Human Development Index of some countries of the world are shown in the table above. On the basis of this, Indian government has prepared a Human Development Index of the different states. अब देखेंगे हम आगे developed and the developing countries. Developed countries are those countries where the citizens easily fulfill their needs of food, clothing and the other human requirement. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि डेवलप कंट्री क्या होती है और डेवलपिंग कंट्री क्या होती है. तो डेवलप कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे लोग जो हैं अपनी कमाई से बड़े ही आराम से अपने खाने की, पहनने की और अच्छी लाइफ जीने की चीज़ों का अपना मतलब ह्यूमन रिक्वायरमेंट जो है उसे कंप्लीट कर पाते हैं. पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से ये सारी चीज़ें क्या है वही कंट्री वो ये चीज़ नहीं रहती. वो सारी चीज़ें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर ली है. तो उन कंट्रीज़ में देखिए कई सारी कंट्री का नाम आता है जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कंट्री के नाम में जानी जाती है, जैसे कि जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, ETC. और यहाँ के लोगों का जो है बहुत ही स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो काफ़ी अच्छा है और सफिशिएंट अमाउंट में कई सारी फूड्स और सारी चीज़ें उनको मिल रही हैं. लेकिन अगर उसके बदले में बात करें तो कई सारी ऐसी कंट्री भी है जहाँ पे सिटीजन्स को सफिशिएंट फूड, क्लोथिंग और बाकी की चीज़ें जो हैं सही तरह से नहीं मिल पाती हैं. तो ये कहीं ना कहीं क्या है, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा लो कर रहा है. In this country, the unemployment and the illiteracy are found on a large scale. These countries are called the undeveloped or developing countries. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka and Myanmar, etc. are placed in this category. These underdeveloped countries are also called the poor, backward, developing or the underdeveloped country. It is difficult to determine whether the country is developed one or developing one. Even then, the developed and the developing countries can be distinguished on the some basis as shown in the table. What is the difference between the developed and developing countries? United Nations has defined in it this way. Developing countries are those countries whose per capita real income is less. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कई सारी ऐसी कंट्री भी है जो अनडेवलप्ड कंट्री है, यानी डेवलपिंग के अंदर है. मतलब वहाँ के लोग क्या बैकवर्ड क्लास के होते हैं, उनका लिटरेसी लेवल बहुत लो होता है, इनकम बहुत लो होती है वहाँ के लोगों की. तो लाइफस्टाइल भी क्या है काफ़ी ज़्यादा लो है. तो इसमें कई सारी कंट्रियों के नाम ऐड है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ETC. अब चलिए देखते हैं. द वर्ल्ड बैंक इन द डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2006 हैज़ यूज्ड द मेजर ऑफ पर कैपिटा इनकम to distinguish between the developed country and the developing country. According to this report, those countries having a per capita income from rupees 4,53,000 or more are considered as the developed country, and the country having a per capita income rupees 37,000 or less are considered as the डेवलपिंग कंट्री विच इज़ अ वेरी लो इनकम. तो हमारी कंट्री की बात करें अगर हम, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, अभी डेवलपिंग कंट्री. तो यानी पर कैपिटा इनकम यहाँ पे कितना निकल पा रहा है, 37,000 के लगभग, या उससे भी शायद कम निकल रहा है. As among different countries of the world, some are fully developed while the others are underdeveloped. In same manner, a country is made up of different states together, in which some states are developed while others are developing state. If we look at India on the basis of the per capita income measure of economic development, then we find that the states are comparatively developed state and some states are developing backward state. We can classify 15 big states of India into two classes on the ground of the per capita income. Developed states and developing states: Punjab, Maharashtra, Haryana, Gujarat, West Bengal, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Andhra Pradesh are included in this list of the developed state. And while the Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Rajasthan, Orissa and Bihar etc. comes in the developing state. According to the census of 2001, the 90% of the total population of the country reside these states. Out of this, the 48% population reside the comparatively in the developed state, and the 42% of the population resides in developing or the backward state. Comparative study of the developed and developing state is shown in the following table. अब देखिए यहाँ पे एक टेबल बताया गया है, उस टेबल में कहाँ पे क्या पर कैपिटा इनकम है लोगों की. और दूसरी बात ये भी है कि इस पैराग्राफ में ये भी बताया गया है कि अगर हम बात करें डेवलप्ड जो है स्टेट और डेवलपिंग स्टेट जो है हमारी इंडिया की, तो वहाँ पे यहाँ कुछ नाम बताए गए कि
इंडिया की ये कुछ स्टेट्स जो हैं यहाँ के जो है ये डेवलप्ड स्टेट है, और यहाँ और भी कुछ स्टेट के नाम बताएं जो कि डेवलपिंग स्टेट है, यानी जो इकोनॉमिकली क्या है, बैकवर्ड है, लिविंग स्टाइल वहाँ की बैकवर्ड है, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन जो है ये इन जगहों से बिलोंग करती है और कुछ पॉपुलेशन जो है अलग जगह से बिलोंग करती है। तो ये चेंज आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है जहाँ पे ये ऑन द बेसिस ऑफ जो है प्रेजेंट प्राइस के हिसाब से लिया गया है, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ 2004 एंड 5। तो पर कैपिटा इनकम लोगों की क्या है और कितनी निकल रही है, उस हिसाब से यहाँ पे वो चीज़ बनाई गई है। Among the developed state, the topmost position is of Haryana on the basis of the per capita income, which is in the 2004 and 5। अगर पूरे टेबल को देखा जाए तो उसमें से सबसे टॉप लेवल पे जो है वो हरियाणा है 2004 और 5 के पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सबसे ज़्यादा इनकम वहीं की, और बिहार जो है सबसे लोएस्ट वन पे है। Economic planning. Economic planning is a process in which the economic resources are used to obtain the some clear and defined aims in a specified period of time. Thus, it can be said that the two things are essential in the economic planning, such as pre-decided aims which have to be accomplished, description of the use of the available resources to obtain the predetermined aim. In economic planning, the government decide how will the economic resources be utilized for a maximum satisfaction of the society. The economic resources of the country are estimated before planning. The available resources from a foreign along with the domestic resources are included in it. After this economic objective are determined and efforts are made to obtain the target by using available resource of the country in a best possible manner. अब देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डेवलपमेंट की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि प्री डिसाइडेड एम जो भी हैं, मतलब अगर हम कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में ऐसा होना चाहिए, तो ये सारे प्री डिसाइडेड एम जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए और इसे अकम्प्लिश हमें करना है, यानी कंप्लीट भी करना है। इसके साथ साथ जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया है सारे रिसोर्सेज को यूज़ करने का, वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी सारे रिसोर्सेज को हमको ऐसा नहीं है कि हम बिना लिमिट के पूरी यूज़ करके ख़त्म कर दें, मतलब हमें उसे एक हिसाब से यूज़ करना है ताकि उससे हम अच्छी इनकम भी ले सकें और अच्छी तरीके से उसे यूज़ भी कर सकें। प्लानिंग इन इंडिया एंड एम्स ऑफ अ प्लानिंग। अब देखिए प्लानिंग क्या है इंडिया की और किस तरह से वो प्लान कर रहा है। In India, the national leaders and the experts emphasized on the need of the construction of the national before achieving our independence in 1934. Sir Vishwakarma presented in the 10 years plan of the economic development and the reconstruction of India of the first time. After that, in 1944, the Bombay plan by the major industrialists of the country and the Gandhian plan, which is a Gandhivadi Yojana by a Sriman Narayan, was presented, but these plans could not be implemented due to some practical reasons. After the independence, in order to make plans for the country, the Planning Commission was set up on 15th March 1950 for the country. By now, the 12 5-year plans have been prepared by this commission and implemented by Government of India. अब कई सारे प्लान्स जो एम है वो देखिए यहाँ पे बताए गए हैं, क्या क्या योजनाएं लाने की कोशिश की गई थी या कैसे कैसे उन्हें कम्प्लीट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में की गवर्नमेंट ने। द मेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द 5-year प्लान्स इन इंडिया आर इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, सेल्फ इंडिपेंडेंस, इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इन डिफरेंट प्लान्स ऑफ द above directive principle emphasis has been laid on the different factor due to the change in a situation and problems. In brief, the basic objective of India plans are as below. अब देखिए क्या क्या वो plans थे, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। To obtain a high rate of development, to obtain a self-dependency, to obtain a economic stability, and to ensure the social welfare, to obtain a social and economic justice, to increase the opportunity of the employment, to increase the standard of living and poverty eradication etc. अब देखेंगे हम वेरियस 5 years प्लान्स इन द इंडिया। अब जो 5 साल की जो योजनाएं होती हैं क्या क्या वो प्लान्स थे वो चलिए हम देखेंगे आगे। 11 5 years प्लान्स हैव बीन till now under the economic planning in the India and the 12th plan is in the progress. The description of this 5-year plan is as below. अब क्या क्या डिस्क्रिप्शन है उस 5-year प्लान की चलिए हम देखते हैं आगे। द सक्सेस एंड द यहाँ पे एक जो टेबल बनाया गया है कि उसका टेन्योर कितना है, किस प्लान का कितने समय के लिए।
Success and failure planning in India. Economic planning in India has begun from 1st April 1951 and till now 12 5-year plan have been completed. During this period, industrial framework of the country strengthened and the self-dependency in agriculture was obtained. Rapid expansion occurred in this field of education, health and the other social field. Following are the major success of the planning in India. Increase the national and the per capita income. At the current price, the national income of India was only 9142 crore in the 1950 to 51, which are rose up to the 2846,762 crore in the year of 2005 and 6 in a similar manner. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कितने ईयर से किस ईयर के बीच में जो है कई सारी पॉलिसीज़ आने के बाद क्या है इंडिया की जो नेशनल इनकम है पर कैपिटा इनकम वो किस तरह से कितनी बढ़ी और कितनी घटी. Increase in the rate of saving and the investment. Some portion of the national income is invested and for the economic development. In each plan, the high target of saving investment were fixed, which have nearly been achieved. The gross saving and investment rate in the year 1950 to 51 were only 8.9 and 8.7% of the gross national product, which increased to the 32.4 and 33.8% in the year of 2005 and 6. अब यहाँ पे बात की गई है इंक्रीज़ रेट की कि किस तरह से सेविंग की गई है, इन्वेस्टमेंट की गई है. तो कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टमेंट भी जो है बढ़ती चली गई है और सेविंग भी जो है कहीं ना कहीं हो पाई है. सम पोर्शन जो भी नेशनल इनकम का हुआ है उन ईयर्स के बीच में. डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. अब देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज एक्सटेंसिवली ड्यू टू द इकोनॉमिक प्लानिंग. The production of food grains increased to the 2083 lakh tons in the year of 2005 and 6, which was only 508 lakh tons in the 1950 to 51. During this period, as a result of a green revolution, high-yielding seeds, chemical fertilizer, pesticides, irrigation facility, etc. were expanded. Along with this, in the agriculture sector, infrastructure developed too. अब देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की है तो कई सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ हुए हैं. कई ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज़ हुआ है. अगर हम उस ईयर की कंपेयर की बात करें तो करीबन 508 लाख ऑफ टन्स जो हैं इस टाइम पे इंक्रीज़ होकर हम बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बढ़ा पाएँ. इवन उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी हमने कहीं ना कहीं जो है वो ज़्यादातर पे डेवलप कर लिया है. अब हम देखेंगे क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन. This has been a remarkable increase in the industrial sector during a various 5-year plans. Today, the India has become the 10th largest industrial country of the world. India's progress can be estimated by the fact that the contribution of the engineering goods, chemical and the cement etc. basis on the heavy industries were set up in the country during the earlier plans. During this period, the role of a public sector became important. In the year of 1950 to 51, the number of public enterprises was only of 5, which rose up to the 242 in a March 2006. अब देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी है वो भी एक रिमार्केबल इंक्रीज़ हुआ है इस सेक्टर में. कई सारी जब अगर हम बात करें नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होगा तो कहीं ना कहीं इनकम बढ़ेगी तो जो है बिज़नेस में लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा. तो ये सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्रियल प्लान की अगर हम बात करें तो कई सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो रैपिडली ग्रोथ की हैं. इसके साथ साथ जो है यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट और बाकी चीज़ें बढ़ी. आयरन जो फॉरेन ट्रेड है वो भी ग्रेजुअली क्या हुआ इंक्रीज़ हुआ. आयरन और स्टील की जो भी काम है इंजीनियरिंग गुड्स के सीमेंट्स की वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी सेटअप कर पाई. तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे अच्छी तरह से बढ़ी. इंक्रीज इन द पावर जनरेशन. अब इंक्रीज इन द पावर जनरेशन क्या चलिए देखेंगे आगे. ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज कंसिडरेबली. पावर जनरेशन विच वॉज द 5.1 बिलियन नोन. अब देखिए यहाँ पे पावर जनरेशन से बेसिकली मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस पैमाने में बढ़ाई गई. मतलब पहले कुछ ही जगह पे आप देखते थे जो है बिजली पहुँचाई जा सकती थी या पहुँच पाती थी, पर उस अब की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब हर गांव में क्या है बिजली पहुंचाई जा चुकी है. तो ये पावर जनरेशन जो है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है. कई सारी स्टेट्स और विलेजेस जो हैं वो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हुए हैं. इंक्रीज़ इन द सेक्टर ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में भी क्या हुआ है बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है. इसके साथ साथ इनमें भी कई सारी जो है प्रोसेस जो है इनफ प्रोग्रेस हुई है.
तो अब देखिए यहाँ पे अगर रोड की बात करें, अगर सबसे बड़ा काम क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन का, मेन है रोड। अगर रोड वहाँ की ढंग की नहीं है तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे अच्छे से नहीं होगा। लेकिन अगर रोड फैसिलिटी काफ़ी अच्छी बढ़ाई गई है तो रोड ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बढ़ते चला जाएगा। Education and health. Prior to the first 5-year plan, there were 27 universities, but now they are 389 in the numbers. The literacy rate of the country in 1950 to 51 was 16.6%, which increased to the 64.8% in 2001. अब एजुकेशन और हेल्थ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं क्या है, इसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अगर जैसे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ने भेजा है। इस तरह से क्या हुआ है, धीरे धीरे इन सारी चीज़ों का रेट नंबर भी जो है बढ़ता चला गया। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें उस टाइम पे तो 16.6% से बढ़ के 64.8% तक की गई है 2001 में। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत हेल्दियर वे में काम कर रही थी। Progress in banking sector. देखिए, the banking service have been expanded considerably during the planning period. In December 1951, the number of branches of the commercial bank in the country was 2,64,700. अब देखिए, अगर हम बात करें प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर की, तो अगर लोगों के पास इनकम रहेगी तो कहीं ना कहीं बैंक के पास भी इनकम आएगी, लोग सेव करेंगे, वहाँ रखेंगे। तो इस टाइम पे जो है इस बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है। इंक्रीज़ इन द एक्सपर्ट, यहाँ पे कुछ जो है पूरी जगहों पे नंबर्स बताए गए हैं कि कितना क्या, कितने रेट में कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, ये सारी चीज़ें वही हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट वन। इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब देखिए, इस टाइम पे जो पीरियड था, इसमें प्लानिंग पीरियड में भी कई ज़्यादा जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ सिग्निफिकेंटली। और जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम है कंट्री में, वो भी 608 से लेकर 606 बिलियन तक जो है रुपीज़ में बढ़ता चला गया। तो ये सारी चीज़ें जो है रिस्पेक्टिवली इस ईयर में बढ़ी हैं। Shortcoming of the economic planning in India. As a result of the economic planning, the country has achieved a significant achievement in the various sectors. But in spite of this achievement, the objective determined in the various plans could not be achieved fully. अब देखिए, शॉर्ट कमिंग्स क्या थी इकोनॉमिक प्लान्स की, क्या क्या चीज़ें जो थी वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करी थी, वो अब हम इस पैराग्राफ में आगे देखेंगे, जो कि फेलियर्स का कारण थी। जैसे स्लो प्रोग्रेस इन पर कैपिटा इनकम। अभी अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो ये स्टिल बहुत ही स्लोली बढ़ रही है, बहुत स्पीड में नहीं बढ़ी है। तो कम से कम अगर हम अब आज की बात करें तो ये सिर्फ 21% जो है पॉपुलेशन का हिस्सा, वो ही इतनी फ़ायदा जो है इंडिया का, वो कम से कम मतलब ये क्या है, ये पॉपुलेशन इंडिया की पॉवर्टी लाइन में है, ये इतना फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। रीजनल इम्बैलेंस। अब एज अ रिज़ल्ट जो प्लानिंग की जा रही है, रीजनल इम्बैलेंस जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, और जो कि डिक्रीज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है कोई सिग्निफिकेंट ज़्यादा चेंज नहीं आ पाया है। जैसे कि कुछ स्टेट्स और की यहाँ पे बात की जो स्टिल क्या है, बैकवर्ड क्लास के अंदर आते हैं, और इसके बदले में इसके कंपेयर में हम बात करें तो कुछ स्टेट जो हैं वो क्या है, डेवलप्ड स्टेट के बाद में आते हैं। इंक्रीज़ इन द प्राइजेस। द प्राइजेस आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग सिंस द पीरियड ऑफ अ प्लानिंग। अब प्राइसेस जो है कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती चली जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हमारे लिए। इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब लोगों के पास देखिए, अब लोगों के पास अगर एजुकेशन नहीं है तो उन्हें प्रॉपर काम नहीं मिल रहा है, अगर प्रॉपर पैसा नहीं है तो कोई और बिज़नेस नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, बहुत ही कम होती चली जा रही है। Increase in the disparity of income and wealth. An important objective of economic planning has been removal of a centralization of wealth and to increase the economic equality. But in spite of planning, the rich have become more rich and poor become more poor. अब देखिए, जो डिस्पैरिटी की बात करें हम इनकम वेल्थ के लिए, पूरी तरह से सेंट्रलाइज नहीं हो पा रहा है कि सभी को इक्वल मैनर में अच्छे से इकोनॉमिक क्वालिटी मिले, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। जो अमीर है वो और अमीर होता चला जा रहा है, और जो गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है। फेलियर ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो भी 5 ईयर के प्लान्स में जो भी पब्लिक के लिए नए नए काम लाए जा रहे हैं कि वो कर सकें और वो बढ़ सकें, उन सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। ये सारी चीज़ें हाईली अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्या है, बढ़ नहीं पा रही हैं। इंडिया विजन 2020। अब इंडिया का जो विजन था 2020 का, वो चलिए देखते हैं क्या है। इन जनवरी 2003 द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज इशूड द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नेम इंडिया विजन 2020। अकॉर्डिंग टू दिस द डॉक्यूमेंट टिल द ईयर 2020 इंडिया विल बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी विल बी कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द कंट्री। अब 2020 का जो विजन था उसके अंदर कई सारे प्लान्स जो आते थे, और ये इनका टारगेट था कि 2020 तक इन सारी चीज़ों को ख़त्म
ख़त्म कर देना है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, ये कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाए, यानी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। The Planning Commission has estimated that by the year of 2020, 135 crore of the country population will be better nourished, will have a good living standard, and be completely healthy, and average age of the population will increase। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इनका ये भी प्लान था कि जो टोटल पॉपुलेशन है कंट्री की वो पूरी तरह से नरिश हो, यानी सबको खाने के लिए खाना मिल सके, जीने के लिए अच्छा साधन मिल सके, और वो कम से कम अपनी एक जो एवरेज लाइफ जितनी उन्हें ज़िंदगी जीनी है उतनी वो जी सकें। नीति आयोग, the National Institution of Transforming India, also called the Niti Aayog, was continued by the Government of India on January 1, 2050 to replace the Planning Commission. Niti Aayog, the premier policy think tank of the Government of India, providing a bold directional policy and everything, was relatively good on the सेंट्रल स्टेट। अब नीति आयोग जो आई है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंस्टिट्यूट कर रही है इंडिया में, कि किस तरह से क्या क्या प्लानिंग कमीशन को क्या किया जाए और बेहतर किया जाए और सोचा जाए, ताकि और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें की जा सकें। तो ये चैप्टर जो है ये बेसिकली पूरी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ था, कि किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके ताकि कंट्री और भी ज़्यादा अच्छी हो सके, किस तरह की प्लानिंग की हमारे इंडिया को ज़रूरत है, इन सारे फैक्टर्स पे यहाँ पे बात की है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू फॉर द डे।